Hello everyone, hello my viewers, to all my students and to all my dear friends. Today in this session, in this video, I am introducing a legend, I can say living legend of law. He is ASJ right now, Additional Session Judge, posted at Tis Hazari Court in Delhi. His name is Devendra Sharma and he is from Azamgarh, UP. And he is, why I am using the word that he is a living legend in the field of law. The reason being, whenever I have interacted to him, then I have always found him to be very say intellect wise, wisdom wise, uh, with the experience, plethora of experience that he is having. Apart from when you talk about law, then it's about concepts in theory, but in practical aspect, it is with say the pragmatic examples that we need to understand, we need to appreciate. So, welcome Devendra Bhaiya to our YouTube channel of Chanakya Judicial Academy and Chanakya CLAT classes. Thank you. It's my honor and privilege to introduce to all my viewers you, Devendra Bhaiya, say at this very, I can say that this is the golden period for the law aspirants. So the prime reason behind that say I have come to introduce him, I have come to meet him and say bring him on this YouTube channel is that his advice will help uh, to understand the complexities of law, to the complexities of life of the young, all budding lawyers and all budding judges, right? So, firstly, I shall be telling you, say to all my viewers about his journey, right? He qualified Delhi Judicial Services exam in 2002 in the month of August. The result got published, and then his training started off in the month of March, the very next year in 2003, and then next year in the month of August again he was given the court to discharge his official functions in conformity with the commands of the law at Tis Hazari Court, right? And then in the year 2015, he became ASG, that is Additional Sessions Judge. We all know that for criminal purposes, it is called ASG, Additional Sessions Judges, and for civil purposes, it is ADJ, that is Additional District Judge, right? That is the brief intro that I have given about Devendra Bhaiya. He is a man of words, man of wisdom, man of intellect, and a living legend of law. I hope that you infer so many conclusions, you infer so many good things about the conversation and with regard to the conversation that we would have had, right? So the first question to you, Devendra Bhaiya, is that ki, what prompted you to go for law field? In the first place, you were studying at BHU. We all know BHU is, the traditional, one of the most iconic university that we have. So, what prompted you to go for law? In reality, it was my second choice. That at that time I was pursuing my graduation BA honors, and I was interested to take admission for MA. Being the student of first class throughout my career, I was dreaming to be a teacher after qualifying the NET, after doing my MA. But as a matter of chance, I have already filled up the form for the admission in LLB. The result published first prior to the admission in my dream course. I took the admission in LLB at the advice, and you can say a little bit of advice and a little bit of insistence of my father. He told me that it's a very good course, you should take admission, and if you find it not so good for you, you can take admission in your MA.
course afterwards. But once I took the admission, thereafter I never returned to any other stream, and I pursued my LLB from BHU. So far as the teaching for new students is concerned, my own journey has been eventful. At that time, it was least preferred course, but now it has become most preferred course in India. After the introduction of 5-year LLB course, मुझे लगता है कि हर माँ बाप चाहता है कि बेटा मेरा वकील बन जाए, जज बन जाए. एक चीज ध्यान में रख के आनी है इस फील्ड में, it is the sole field where you require study for your whole life, either as a judge or as an advocate. You have to study, that maybe for 10 minutes, 20 minutes, for 1 hour, but you have to study. You have to keep in mind prior to taking the admission that if you want to pursue your LLB, you have to study for your entire life. This is the first formula to take entry in this field. To become a judge or to become a good lawyer, the sheer hard work along with your luck, the combination of both would be resulting, and that too in future. What should we take precaution at the time of admission? That not only because that there is wide publicity in the newspaper, we are finding the news on the front page on daily basis about the law, about the courts, about the cases, and that is also influencing the young buddies to enter into this field. But my sincere advice would be that if you want to pursue your degree, your career, so please be ready. It's such great field that only sky is the limit in this field. आप आसमान को छोड़ के आपको कुछ भी रोकने वाली नहीं है चीज़ यहाँ पे, तो आप आएँ, बहुत अच्छा फील्ड है. आपको मान के चलना होगा कि भाई आपको पूरी ज़िंदगी मेहनत करनी है और मेहनत करनी है. बाकी सफलता के बारे में आपको सोचना नहीं है. ये संभव है कि शुरुआती दौर में सफलताएं आपको दिखें कि नहीं हैं, लेकिन आप सफल होगे, ये पक्का है. ये ऐसा फील्ड है कि जिसने भी मेहनत करी उसका मुकद्दर ने साथ दिया. तो और अगर आपने एडमिशन लेना है तो डिग्री मैटर्स, इंस्टीट्यूट मैटर्स, बट अल्टीमेटली इट इज यू हु मैटर्स. Okay, so it's so enriching and you defined everything in its very concrete essence. दूसरा क्वेश्चन भैया ये है कि you are ASG, एडिशनल सेशन जज राइट नाउ एट 30 हजारी कोर्ट, एंड इसके पहले भैया करकाडुमा कोर्ट में एएसजी थे और उसमें इनके पास पॉक्सो कोर्ट था, इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट था. तो सवाल ये है भैया कि क्रिमिनल लॉ में जब जजेस लोग जो होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बड़ा जो माफिया है आ गया, कोई उसका केस आ गया, तो कभी ऐसा लगा कि मतलब कि यार हम लोग तो मतलब इतने सीधे लोग, पढ़ने वाले लोग थे और इतना बड़ा केस आ गया, कहीं मतलब कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या कोई बड़ा केस आ गया जिसमें कि प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा है कि क्या होगा, मीडिया इसको कैसे ट्रीट करेगा, ऐसा कुछ लगा? एक मजेदार चीज़ है कि इस प्रोफेशन में एक कहावत है कि खाते अपनों का अपना है और सोचते दूसरों के बारे में. चाहे वो वकील हो, जज हो, सबकी यही है. और सो फार एज सेफ्टी और सिक्योरिटी, कोई वकील या कोई जज दिमाग में ये चीज़ रखता ही नहीं है. अगर वो रख ले तो घर वाले ही उसको घर से बाहर न जाने दें, क्योंकि ये फैक्ट है
कि जब भी क्रिमिनल कोर्ट में आप जाएंगे, चाहे एज ए लॉयर और या एज ए जज या एज ए प्रोसिक्यूटर, तो आपको पता होता है कि भाई सामने आने वाला जो है वो हार्डकोर क्रिमिनल भी हो सकता है, कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो सकता है। तो ये चीज़ें 20 सालों की नौकरी में कभी दिमाग में बैक ऑफ द माइंड भी नहीं होती हैं। जिस दिन ये चीज़ दिमाग में आई उस दिन पक्का है कि नौकरी छोड़ के आदमी अपने घर बैठ जाएगा, वकालत छोड़ के आदमी अपने घर बैठ जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि गैंग राइवलरी होती है, बाकी चीज़ें होती हैं। और मेरा अनुभव बताता है कि इतने सालों में, चाहे जिसको हम हार्डकोर क्रिमिनल कहें, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर कहें या ऑफेंडर कहें, कभी किसी को न किसी वकील से शिकायत होती है, न जज से शिकायत होती है। अगर उनको शिकायत होती है तो प्रोसेस से होती है। उनकी सारी और सारी चीज़ें वो चाहते हैं कि फेयर प्रोसेस से हो, एक्विटल हो, कन्विक्शन हो, जो भी हो, और प्रोसेस से होती है, टाइम से होती है। वो चाहते हैं ये चीज़ें टाइम से हो जाएं। इसलिए पिछले 20 सालों के अपने से कह सकता हूँ कि भाई कभी इस तरीके की चीज़ें बैक ऑफ द माइंड न किसी वकील साहब के घर पास होती है, न किसी कोर्ट के पास होती है। जिस दिन बैक ऑफ द माइंड दोनों में से किसी के पास होगी, उसके घर वाले ही मना कर देंगे कि नहीं जी आपने नहीं जाना है, आप नून रोटी खाएंगे लेकिन घर पे ही रहना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया मेरा आपसे ये है कि आप BHU से पढ़ाई किए, सच एन आइकॉनिक यूनिवर्सिटी, एंड आई एम टेलिंग यू हाउ आई केम इन कॉन्टैक्ट विद हिम. माई एल्डर ब्रदर संजय भैया, he was Devendra Bhaiya Junior in BHU, and Sanjay Bhaiya also qualified Bihar Judicial Services, and right now he is additional district judge at Supol. So संजय भैया ने मुझे इनके बारे में बताया था और मैं भैया से मिलने आया, एंड तब से फिर मैं आता ही रह गया. फिर मैं हमेशा इनके घर पे आ जाता हूँ, इनका समय बर्बाद कर देता हूँ 2-3 घंटे, क्योंकि मुझे इनके पास से वो सारी चीजें मिलती है जो कि किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है, जो कहीं पे आपको नहीं मिलता है. मैं बहुत सारी बातें इनसे सीख करके जाता हूँ प्रैक्टिकल लेवल पर, और नॉट ओनली विद रिगार्ड टू लॉ बट विद रिगार्ड टू लाइफ लेसन्स, राइट. लाइफ साइंस क्या होना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें आप बात करते हुए कॉन्वर्सेशन के बीच में आप समझते हैं. तो भैया को लाने का मेन पर्पस ये भी है कि जो इनका एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो एसेंस है, जिस तरीके से इन्होंने लाइफ जिया है, तो वो आपको बताएं, वो शेयर करें. तो भैया मेरा सवाल ये है कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज इज कंसिडर्ड इन इंडिया टू बी द मदर ऑफ ऑल जुडिशियल सर्विसेज, एंड यू क्वालिफाइड दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. हाउ इट बिकेम पॉसिबल? लाइफ में एक चीज़ हमेशा सबने नोटिस करनी है, चाहे आप लॉ के फील्ड में आओ, मैनेजमेंट के फील्ड में जाओ, या आप कहीं भी जाओ, इट्स योर लेबर विच इज़ द प्राइमरी थिंग. आपकी मेहनत, आपका श्रम प्राइमरी चीज़ है. साथ में लक एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा लेबर को फेवर करती है, लेकिन लक का भी उतना ही रोल होता है. बिना मेहनत किए आप सोचो कि लक फेवर कर जाएगी तो कभी संभव नहीं है. मेरा यहाँ आना भी एक अद्भुत संयोग है. हम 3 लोग फॉर्म भरा और 3 में से एक आदमी एग्जाम ही देने नहीं आया, 2 लोग हम लोग एग्जाम आए. जिन्होंने मेरा फॉर्म भेजा था वो भी मेरे साथ आज की जज हैं. उनका आज भी मैं कर हूँ. आने के बाद भी मैंने उनको वो पैसा नहीं दिया, क्योंकि उस समय दिल्ली जुडिशरी में एक चीज़ की भी, बाहर से लोग कम आते हैं, कम आना चाहते हैं या कम आते हैं, रीजन जो भी रहे हों. हम लोगों ने फॉर्म भरा और हम 2 एग्जाम दिए, 2 में से मेरा सिलेक्शन, एक में फॉर्म भेजू से. यहाँ आने का संयोग ये बना कि फॉर्म भरने के बाद मैं भी इंटरेस्टेड नहीं था कि चलो इतना दूर दिल्ली में कभी आया ही नहीं था. तो मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं था. मेरे दिमाग में हमेशा था कि यूपी में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा तो कल होगा, हो जाएगा. लेकिन दूसरे सज्जन जो आज की डेट में लखनऊ हैं, उन्होंने कहा नहीं जी एग्ज़ाम देने तो चलना पड़ेगा, चाहे आप चाहे. मैंने कहा जी इसमें पड़ेगा क्या, चलो चलते हैं. आया, एग्ज़ाम दिया, और कोई अलग से तैयारी
मैंने ना कहीं कोचिंग करी, ना ही कभी अलग से कोई तैयारी करी कि नहीं मुझे जे का एग्ज़ाम देना है। जिस दिन भी मैं एडमिशन लिया, मैंने कभी ये नहीं करके पढ़ाई करी कि भाई ये 5 क्वेश्चन करने हैं तो इसके लिए 7 क्वेश्चन तैयार कर लो। शुरू से ही किताब पढ़ी, किताब आदि से अंत तक पढ़ी, A to Z। उसका फ़ायदा जब मैं एग्ज़ाम देने लगा हूँ तब समझ में आया कि नहीं, वो अकेली पढ़ाई मेरी LLB की, उसके बाद मुझे कभी अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उस ज़माने में, आज तो कंपटीशन इतना तगड़ा है, उस समय कंपटीशन नहीं था, इस तरीके का हार्श कंपटीशन नहीं था। और यहाँ सिलेक्शन जब हुआ तो सारे लोग चकित रह गए कि दिल्ली में सिलेक्शन होना उस समय नामुमकिन ही माना जाता था, दिल्ली से बाहर वालों के या दिल्ली के आसपास वालों के लिए। क्योंकि उस समय पहली बार, वो जहाँ तक मुझे पता है कि पूर्वांचल से आने वाले मेरे साथ एक और जी साहब हैं, ये हम 2 लोग आए थे। तो एग्ज़ाम के बारे में जहाँ तक रही बात, तो एग्ज़ाम एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि आपका लेबर, और स्पेशली जब आप एडमिशन लेते हैं डे 1 टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर स्टडी, नॉट फॉर एनी एग्ज़ाम। अगर आप पढ़ते हैं तो सफलता मिलती है, एग्ज़ाम तो बाद में आएगा। आपका एग्ज़ाम हर दिन है, आपका रोज़ रेगुलर क्लासेस अटेंड करना ही एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। उसके बाद वापस के आके अपनी तैयारी करना, अपनी पढ़ाई करना, अपनी विजन करना, फ्यूचर के लिए चीज़ों को तैयार करके जाना, वो भी एक एग्ज़ाम है। ये हर घड़ी एग्ज़ाम है और आपको हर घड़ी करना है। आप ये केवल कानून के लिए या लॉ के लिए ही नहीं, बाकी जीवन के हर मोड़ के लिए ज़रूरी है। आप हर समय देते हो, आप घर में, परिवार में, आप 2 बच्चों के बीच की लड़ाई में आप घर पे भी होते हो। ऐसा नहीं होता है कोर्ट जज होते हैं, 2 बच्चों की लड़ाई में एक बड़ा जो है वो हमेशा जज होता है। अंतर क्या होता है दोनों प्रोफेशन में कि उस जज को मैटर को सुलझाने में घंटों घंटों लगते हैं। यहाँ कई बार क्या होता है कि हमें सेकंड में डिसीजन लेना होता है कि जी हमारे वकील साहब नहीं है, एक पार्टी करती है इसलिए डेट दे दिया, दूसरी बार पार्टी करती है कि नहीं जी डेट नहीं लगनी चाहिए। विद इन सेकेंड हमें डिसाइड कर लेना है कि डेट देनी है तो विथ देनी है, नहीं देनी है, बस इतने है। अदरवाइज लाइफ में हर आदमी जज है, कभी अपना है, कभी दूसरों का है, कभी परिवार का है। प्रोफेशन का खाली इतर यही है कि हम हमेशा दूसरों के जज हैं, लेकिन साथ में हम हमेशा जज खुद भी होते हैं। हमारे अपने एक्ट, अपने डिसीजंस, हर चीज़ जज जाती है। तो ये एक नोबल प्रोफेशन है, जिस प्रोफेशन में आपको कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल नेचुरल रहने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं इस रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि टाइम कैमरा फेस में दिक्कत होती है, लेकिन आपको अपनी प्रोसीडिंग्स में अपने एक्ट नेचुरल करना है, यही इस फील्ड में है। और आपको यहाँ पे कहीं कोई परेशानी होनी ही नहीं है। एक बार आपने अपनी पढ़ाई लिखाई ढंग से LLB करके आ गए तो कोई परेशानी नहीं एज कभी भी लाइफ में नहीं है। और बाकी कुछ मुकद्दर का भी रोल है, जिसमें आज अविनाश कर रहे हैं तो उसमें मुकद्दर का भी है, उसको आप इस तरीके कर सकते हैं। मेरे जूनियर के भाई निकले तो ये एक मुकद्दर से आप समझिए मुलाकात, अदरवाइज कहाँ मुलाकात होती है, कहाँ मैं बनारस और उसके बाद दिल्ली, सारा कर्म क्षेत्र बंगलोर पटना रहा, लेकिन मुलाकात होती है तो मुकद्दर होती है। तो मुकद्दर का यही इतना ही है, बाकी इनका हार्ड वर्क है। आज काम पे हैं, ये अपने हार्ड वर्क में मैं पहुंचा हूँ। मैं बोलूँगा कि हार्ड वर्क है, इसे मुकद्दर को भी मानता हूँ, मैं बोल दैट इज सो अमेजिंग भैया। ये बताइए कि बहुत बार ऐसा होता है कि तीसरी तैयारी कर रहे हैं, 2 साल लग गया, 4 पहली बार में नहीं और लास्ट तक नहीं हुआ, तो फिर वो बंदा मतलब कि लिटिगेशन ज्वाइन कर लेता है, ऑटोमेटिकली लिटिगेशन में आ जाता है। तो लिटिगेशन में फिर उसका क्या स्कोप है, मतलब वो आगे एक अच्छा लॉयर बनना बहुत मुश्किल काम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ गुड लॉयर, तो उसके बारे में
बताइए कि उसको कैसे अपने आप को लेके जाना। ये जो कहावत है, स्काई इज द लिमिट इन द प्रोफेशन, वो वकील के लिए है जो वकालत कर, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, या कोई भी कर रहा है। ये स्काई इज द लिमिट इसीलिए की जाती है कि भाई आपके पास आप जा लाइफ में जो भी चाहते हो, आप प्रतिष्ठा, तो एक वकील की प्रतिष्ठा किसी की प्रतिष्ठा नहीं होती है। अगर आप इसमें से कोई गांव देहात से होगा तो सारे लोग बोलते हैं "क्या बहुत बड़ा वकील पहलवा का"। ये एक इतनी बड़ी उपमा थी कि मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं और आप नौकरी ही इस डिग्री का ध्येय नहीं है। नौकरी तो उसमें से 1% या उससे भी कम लोगों के लिए ध्येय है, बाकी सबके लिए तो लिटिगेशन ही है। नौकरी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है लाइफ में। आप नौकरी पा गए इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे काबिल आदमी, आप सबसे इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। लाइफ में मैंने बताया कि किसी भी सफलता में 90%, 95%, 98% हम और 1-2% आपका भाग्य, ये दोनों का कम होता है। भाग्य नहीं बना, 98% को उसने ओवर शेडो कर दिया और आप वकालत में चले गए। तो वकालत को आप सीरियसली लीजिए। 3 चीज़ें मैंने नोटिस करी है, वकालत आते ही हम रिलैक्स हो जाते हैं। उसके लिए सिंसियर एडवाइस है कि आपको मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सुनने से ज़्यादा सुनने की ज़रूरत होती है। आप अपने क्लाइंट को कितना सुनते हैं वो बहुत हद तक आपके केस को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जो एक दिक्कत क्या आती है कि हमें ये समझाया जाता है कि हमें डिफेंस गढ़नी है। कोई डिफेंस बहुत ज़्यादा नहीं चलती है, डिफेंस की होती है। अगर आप उसको सुनेगा तो आपका क्लाइंट ही डिफेंस सारी बताएगा। उस चीज़ को ध्यान रखिए, आपको कभी भी असफलता उस केस में नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, पढ़ना। मैंने शुरू में भी कहा कि डिग्री है तब भी, प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी, जज हो गए तब भी पढ़। आप कुछ नहीं करिए, रोज आपके पास कोई ब्रीफलेस वकील हैं, अभी ट्रेनी जज हैं, आप रोज एक सोते समय जजमेंट पढ़ लीजिए 5 से 7 मिनट का। ये मत देखिए वो किस टॉपिक पे है, आप उसको पढ़िए। वो आपको किस दिन कहाँ काम आएगा आपको भी पता नहीं होगा। हर साल में अगर आप मिनिमम 365 जजमेंट पढ़ते हैं तो 365 जजमेंट किस केस कब कहाँ आपको आएंगे आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपको हमेशा एनरिच करते हैं, आपके डिफेंस तैयार करने में मदद करते हैं, आपकी लिटिगेशन तैयार करने में मदद करते हैं। आप सिविल के वकील बनना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको मदद करेंगे, क्रिमिनल बनना चाहते हैं वहाँ भी, इवन आप भी हो जाते हैं कल को, वहाँ भी आपकी अपनी पढ़ी हुई चीज़ें। आप ये मत सोचिए कि भाई आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना शुरू करते हैं तो सब लोग कहते हैं भाई ये रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ, इसकी जरूरत पड़ेगी जब मैं वकील हो जाऊंगा या मैं जज हो जाऊंगा। इसकी ज़रूरत वहाँ भी पड़ती है। आप इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि आज की डेट में जितने नेचुरल लॉ हैं सबको ओवर मैन मेड लॉ ने किया हुआ है। आप देख लीजिए लाइफ में कहीं भी जाइए, आप किसी भी चीज़ पे, लाइफ के किसी भी कोने में आप इन्वायरमेंट पे देखिएगा तो उस पर भी आपको इन्वायरमेंट से लेके एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, आप पीसी सब लोग जानते हैं। आप राइट्स पे बात करिएगा तो सिविल राइट्स, क्रिमिनल राइट्स, दुनिया भर के राइट्स अलग अलग एक्ट्स में डिफाइंड। तो ये सारे मैन मेड लॉ हैं। अब इसमें रियलिस्टिक स्कूल का क्या रोल है? रियलिस्टिक स्कूल का रोल ये है कि मैन मेड लॉ ही उसी मैन में से कुछ जज हो जाते हैं। जज मेड लॉ को ही रियलिस्टिक ऑफ लॉ, रियलिस्टिक स्कूल बताता है। भाई उस समय हमें नहीं पता होता है कि भाई ये क्यों पढ़ा जा रहा है, लेकिन सारे मेड लॉ हैं और उस लॉ में से कुछ जज लॉ होते हैं। कुछ जज के पास अपने पावर नहीं होते हैं, उनको भी पावर कहीं से डिराइव किए होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारे अपेक्स कोर्ट से डिसीजन आते हैं तो उसमें हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल हम राम जन्मभूमि केस को लें तो अल्टीमेटली वहाँ पे हमें देखेंगे कि वहाँ पे सोल्यूशन दिया गया कि जो
लिस्ट थी उसको तो प्रेस किया गया, साथ में एक सोल्यूशन भी दिया गया कि जो दूसरा पावर है उसके लिए भी मुहैया कराई गई, वो स्पेशल पावर था। तो वो रियलिस्टिक लॉ स्कूल ऑफ थॉट जो है वो उस समय नहीं समझ में आया, लेकिन जब वो जजमेंट आएगा तो आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा भाई वो रियलिस्टिक स्कूल क्यों बनाया गया। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्या आईना दिखाना है, आईना आपने रोज़ देखना होता है, और पढ़ाई लिखाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है लाइफ। आप हों, हम हों, या अविनाश जी हों, ये सब लोग अपनी लाइफ में सफलता पाने के लिए रोज़ संघर्ष करते हैं, रोज़ मेहनत करते हैं। कई बार हमें वो सफलता नहीं मिलती है जिसकी हमें चाह होती है, जिसकी हम उम्मीद करते हैं। सफलता भी सफलता और असफलता का कोई बहुत बड़ा पैमाना भी नहीं है। आप कह सकते हैं एक आदमी जज वो बड़ा सफल आदमी, ऐसा नहीं है। जज में भी कैटेगराइजेशन हो जाता है, सेशन जज है, हाई कोर्ट जज है, सुप्रीम कोर्ट जज है। तो सबका जज तो आदमी खुद का खुद ही है। लाइफ में आप खुद के जज बनिए, गलतियाँ हैं उसको पकड़ना सीखिए, बाकी सारी चीज़ें आप अपने आप ही क्योर हो जाएंगी। That's such a pragmatic answer. भैया ये बताइए कि और जो उनको क्या एडवाइस देंगे जो कॉलेज पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते करते बहुत लोग होता है कि तब हम अपना करियर फिक्स कर लें कि हमको लिटिगेशन में जाना है, कि जुडिशरी में जाना है, कि कॉर्पोरेट्स में जाना है। तो उन या फिर तो वो उसके बाद जब इसके ब्रेक में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो उसी तरह से वो डिसाइड करते हैं कि यार हमको लिटिगेशन में जाना है तो लॉयर्स के साथ लग गए, कॉर्पोरेट्स में जाना है तो फर्म्स में चले गए। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए लोग। उसके लिए सबको सिंसियर एडवाइस होती है कि आप करियर के स्टडी के शुरुआती फेज में आप रिजिड नहीं रहिए करियर को लेकर। पहले 2 साल तक आप पहले देखिए कि भाई अल्टीमेटली, क्योंकि आपको नॉलेज हो जाता है मोटा मोटा कि आपके लिए सुटेबल क्या है। एक पर्सन जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत स्टूडियस है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करता आपको, और वो चाहता है कि मैं लिटिगेशन में जाऊँ। आपको फिर यहाँ से आपको अपनी पर्सनैलिटी चेंज होगी, आप चीज़ को ठीक करना होगा कि नहीं जी एक्सप्रेसिव होना होगा, तो फिर आप लिटिगेशन जाइए। इसलिए सिंसियर एडवाइस है कि शुरू के 2 साल तक कोई फिक्स नहीं रखिए, और ये भी नहीं रखिए कि गोल पोस्ट लगातार चेंज करते रहें। एडमिशन लें कि जी मुझे जज बनना है, लेने के 6 महीने बाद आप कारपोरेट लॉयर बन गए, और 1.5 साल बीतते आप लिटिगेशन के बड़े लॉयर हो गए हैं। तो आप लगातार गोल पोस्ट शिफ्ट करना है। अपने गोल रखिए, लेकिन वो उसको फ्लेक्सिबल रखिए और लूज रखिए। 2 साल बीते, फिर उसके बाद आपको देखना है कि अल्टीमेटली अब हमें करना है, उसको शेप देना शुरू करिए। तीसरे साल के अंत तक आते आते आप अपने गोल को अब ऑलमोस्ट फिक्स कर लीजिए कि आगे हमें क्या करना है। एक बहुत बड़ा कारण है कि जब आप 5 ईयर LLB कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो पहले 2 साल में लॉ से कोई बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं होता है। कुछ पेपर्स होते हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं, आपको एक ओवरव्यू दिया जाता है, न कि नॉलेज और डीप थॉट उसमें होते हैं। 3rd ईयर से आपकी पढ़ाई शुरू होती है, और वहीं से आपको आइडिया लगना शुरू होता है कि हमें आगे जाना कहाँ है। 3rd ईयर बीतते उसके बाद आप एक मोटा मोटा गोल फिक्स कर लीजिए कि हमें लिटिगेशन में जाना है, कारपोरेट में जाना है, नौकरी करनी है। फाइनली 4th ईयर तक आपको डेफिनेट करना चाहिए अपने गोल के लिए कि हमें अब आगे करना क्या है, क्योंकि 5 साल आपको जिस भी फील्ड में जाना है उस पूरे साल में आपको उस फील्ड के लिए ही स्पेसिफिक होकर तैयारी करनी है। अगर लिटिगेशन में जाना है तो लिटिगेशन के हिसाब से कि भाई हमारा सीनियर कौन होगा, हमने प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करनी है, हाई कोर्ट में करनी है, सुप्रीम कोर्ट में करनी है। हमें नौकरी करनी है तो कौन सी नौकरी करनी है, लॉ के फील्ड में करनी है, बाहर जाना है, कारपोरेट प्रैक्टिस करनी है। तो आप 5वें साल में आपका गोल एकदम फिक्स होना चाहिए। 4th ईयर तक के लास्ट में आके आप उसको फिक्स करिए, 5वें साल पूरी मेहनत करिए, और 3rd ईयर से आप शुरू करिए और वहाँ से असेस करना शुरू करिए कि जी मुझे लिटिगेशन में जाना है, मुझे सर्विस करनी है, या फिर कारपोरेट में जाना है। क्योंकि फील्ड तीनों ओपन है, तीनों अच्छे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। एक जज के पास पावर होता है तो एक वकील के पास भी उतना ही होता है। और कारपोरेट में भी आज की डेट में
अगर ड्राफ्टिंग ही नहीं हुई, रीडिंग ही नहीं हुई, तो बाकी सारी चीज़ें बाकी दोनों के लिए दिक्कतें रहती हैं। तो मेरी सिंसियर एडवाइस है कि फर्स्ट 2 years enjoy your college life, enjoy your study, not only college life but study. 3rd year से आप शुरू होइए, कीजिए आशा कीजिए कि हमने क्या करना। 4th year में आके आप कंफर्म हो जाइए कि हमें क्या करना है। देखिए आपके पास 2 साल रहे हैं, अगर कॉर्पोरेट में जाना है उसके लिए, लिटिगेशन में जाना है उसके लिए, और आपने नौकरी करनी है तो उसकी तैयारी शुरू कर दी। और तीनों फील्ड में 1 साल का समय मोर देन सफिशिएंट कि आप उसके बाद आप अपने को पाएंगे कि आज डेट में यू हैव बीन ड्राइव टू एंटर इनटू योर प्रोफेशनल लाइफ इधर एज एन एडवोकेट और एज ए कॉर्पोरेट। ओके, सो वेल एक्सप्लेन्ड। तीसरा जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, वो मतलब बिट जस्ट माय ओन क्यूरियोसिटी, एंड आई थिंक मतलब पीपल विल रिलेट टू दिस, कि जब जज बनते हैं तो एक ऑरा आ जाता है, मतलब कि जज बन गए, एक माहौल क्रिएट हो जाता है। तो एक आजमगढ़ से एक यंग लड़का निकल करके बनारस जाता है, बीएचयू में पढ़ाई करता है, और बीएचयू में मतलब आप वन ऑफ द टॉपर्स रहते हैं, और फिर आप जज बन जाते हैं। अ, हम सब लोग जानते हैं कि आपने खुद भी बताया है कि आप कोई बहुत बड़े घराने से नहीं थे, कि मतलब बहुत रिच घराने से थे या प्रिविलेज घराने से थे। तो एक मिडिल क्लास लड़का एकदम आजमगढ़ के मोहल्ले से निकल करके बनारस करके गया, और फिर वो भी दिल्ली में जाना, क्योंकि हम लोग आजमगढ़ में मगही या अवधी भाषा बोलते हैं, और वहां से बनारस पूर्वांचल में रहना, फिर दिल्ली में मतलब कि आ जाना। तो गांव में क्या रिएक्शन था, मतलब तो सब लोग बड़े खुश होंगे कि यार आपके मम्मी पापा मतलब पागल हुआ कि यार मतलब क्या हो क्या गया, बेटा मेरा जज बन गया। आप और आपको कैसा, जब आप ये न्यूज सुने, व्हेन दिस न्यूज इनिशियली ब्रोक आउट टू यू, तो व्हाट वाज योर इमीडिएट एक्सप्रेशन? एक सबसे मज़ेदार फिर इस फील्ड की चीज़ जो कि अब बदल गई है, आज से 20-25 साल पहले किसी आदमी को पसंद नहीं था कि कोई लॉ कर रहा है, लेकिन तब भी जज बनते ही सबको लगता था कि जी बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली है। एक मज़ेदार चीज़ थी कि कोई भी जज बिना लॉ की डिग्री लिए नहीं सकता है। तो ये विरोधाभास उस समय भी मुझे समझ नहीं आता था कि लॉ करने वाले को तो कोई बहुत अप्रिशिएट नहीं करता था, पूछते थे बीएड क्यों नहीं कर लिया। हम्म, तो चीज़ों के बारे में अब वो जज बनने के बाद उस समय सबको लगा कि हाँ जी ये हैं, आज आपने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली। आज भी जज बनना अच्छी चीज़ मानी जाती है, बड़ी सफलता मानी जाती है, उस समय भी मानी जाती थी। लेकिन अब डिग्री का महत्व बदल गया है। उस समय डिग्री के लिए मारामारी नहीं थी। आज की डेट में बच्चों ने भी, सारे लोग यंग एज में आते हैं, उस समय एक मेच्योर्ड एज में आते थे। डिग्री की शुरुआत ही 20 साल के पहले तो शायद ही कोई एडमिशन लेता था एलबी में। आज की डेट में 20 साल में तो 2 साल 3 साल उनके ऑलरेडी हो गए होते हैं एलबी के। रही बात मेरी कि सफलता के बाद एक लाइफ में सबसे बड़ा लेसन होता है कि आप चाहे ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं या कहीं भी जीवन में जिस भी मुकाम पे हूँ, मैं कभी ओवर एक्साइटेड हुआ और न ही कभी ये लगा कि नहीं जी मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मुझे ये असंभव कुछ भी नहीं लगा। जज बना, दोस्तों ने पूरी, मुझसे ज़्यादा खुशी उनको हुई। मुझे तो जो होनी थी वो तो हुई, लेकिन मैं एक्सप्रेसिव आदमी नहीं रहा, तो इसलिए चीज़ें, हाँ मुझे भी लगा कि हाँ लाइफ में एक मुकाम है अब आगे चल के। तो सबसे बड़ी बात माँ मना का आशीर्वाद, भीख मांग के बनाई यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले की। और जमाने में जब 200-250 सालाना फीस होती है, हॉस्टल फीस और ट्यूशन फीस, तो हमारे लिए तो एक बड़ी सफलता थी। परिवार के लिए, समाज के लिए भी सबका आशीर्वाद मिला, सबका प्यार मिला, और वो प्यार और आशीर्वाद आज तक बना हुआ है। इसका फ़ायदा आज भी मुझे मिलता है। मेरे मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? मम्मी पापा आज की डेट में, आज की डेट की तरह उस समय कम्युनिकेशन साधन नहीं थे। मैं गया, ये पता चलने के बाद 1-2 दिन तो दोस्तों मित्रों ने ही जाने नहीं दिया। फिर 1-2 दिन बाद गया और फ़ोन पे बता था कि हाँ जी इस तरीके के है। जाने के बाद
हर माँ बाप की एक चाहत होती है कि बेटा एक मुकाम पाए। उनको भी एक सेटिस्फेक्शन मिला कि बेटा एक मुकाम पाया। उस समय चीज़ें भी थोड़ी बदली थी, प्रैक्टिस वगैरह की रिस्ट्रिक्शन थी, 3 साल 4 साल सारी चीज़ें अप्रेंटिसशिप और प्रैक्टिस होता था, तो टाइम पीरियड लंबा था। लेकिन उन्होंने भी धैर्य नहीं खोया, मैंने भी धैर्य नहीं खोया। और धैर्य ही सफलता की कुंजी है लाइफ में। चाहे वो आप जज बने, वकील बने, कारपोरेटर बने, कुछ भी बने, सफलता की कुंजी धैर्य है। धैर्य आप अपना धारण करे रहेंगे, लाइफ में कुछ न कुछ मिलना ही है। और वो जो भी मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। और माँ बाप भी प्रसन्न हुए, परिवार वाले भी, रिश्तेदारों ने भी। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो हमेशा दोस्तों की थी। उनको लगता है कि हमारे बीच से चीज़ें हैं, क्योंकि उस जमाने में वैकेंसी और बाकी सिलेक्शन वगैरह थोड़े इतने रेगुलर नहीं थे जो आज की डेट में। उस समय न्यूज़ भी इतना नहीं होता था। आज तो फ्रंट पेज पे अगर 10 न्यूज़ हैं तो 10 में से 4 से 6 न्यूज़ कोर्ट के ही होते हैं। उस ज़माने में सारे पॉलिटिकल न्यूज़ करते थे, कभी कभार नहीं होता था। ये प्रोफेशन बारिश नहीं। आज की बहुत हो गया, आप सारी सुना है, तो इस फील्ड में अगर आते रहिए, बनाए चलता अवश्य मिलती है आपके हिसाब से। लेकिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ है कि सब मिलता है और मेहनत का ही मिलता है। लगता सबको है, मिलने के बाद सफलता नहीं लगता है कि चीज़ हो गई है। आपको लगता है मैंने टॉप कर, मैंने यहाँ टॉप किया, वहाँ क्यों नहीं टॉप किया। इसलिए जो मिल रहा है उसको चाहते हैं, उसके लिए सफलता अवश्य मिले। ओके भैया, इन्होंने बताया कि उतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होते, उतने एक्सप्रेसिव नहीं है। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। वी ऑल नो, वी ऑल हैव सीन एम एस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, कितना काम कंपोज्ड, मतलब वर्ल्ड जीत जा रहा है बंदा, एकदम आराम से खड़ा है, उसको फील ही नहीं हो रहा का एक्साइटमेंट। तो अपने आप को भी प्रेशर वाला सिचुएशन है जो कि शर्मा को बॉल गया। तो जब आप प्रेशर को नहीं लेते हैं, प्रेशर नहीं लेते ऊपर उतना, आप बिल्कुल कंपोजर बना करके रखते हैं, तो सक्सेस पाना थोड़ा आसान हो जाता है। एक चीज है भैया जो मैं चाहूंगा, आपने मुझे बताया है कि, और मैं चाहूंगा कि सारे व्यूअर्स इसको ध्यान से सुने, बड़ा इंटरेस्टिंग और funny है थोड़ा, कि संजय भैया ने आपसे पूछा कि सफलता क्या है, सफलता कैसे मिले, सफलता कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आपने उनको जो बताया था वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आप चाहता हूँ कि आप सारे लोगों को बताइए ये बात। संजय एक अच्छे जूनियर रहे और प्री जूनियर रहे और भी जूनियर आते हैं। तो उन्होंने ये दुनिया जानती है, आप लोग भी जानते हैं कि सफल व्यक्ति के बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, सगे होते हैं, दोस्त होते हैं। और असफलता आपको ही नहीं, लोगों को भी आपसे करती है। तो उस जमाने में क्या होता था, किसी कम होती थी, सिलेक्शन कम होता था, तो सिलेक्शन मतलब एक ही चीज़ मानी जाती है। तो संजय भी और भी जूनियर था है, तो इन लोगों ने कहा कि भैया फार्मूला बता दीजिए जिससे सफलता मिलती है लाइफ में, और स्पेशली एग्जाम के लिए। तो मैंने सिंपल सा जवाब दिया कि अगर सफलता का कोई फार्मूला होता तो मैं भी पेटेंट करा लेता हूँ और करोड़ों कमाता, मुझे भी नौकरी करने की जरूरत नहीं होती। लाइफ में सफलता का कोई फार्मूला नहीं होता है। सफलता का फार्मूला सिंपल सा है, मेहनत करिए, मुकद्दर के भरोसे केवल नहीं रहिए, धैर्य बनाए रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यही बात आज की डेट में जो संजय, जो नाज जी के अपने बड़े भाई भी हैं, और उनके साथ आए हुए संतोष जी, आज संतोष जी प्रयागराज में डिस्ट्रिक्ट जज हैं, और संजय आज की डेट में हमारी इक्विवेलेंट हैं, सुपौल में पोस्ट हैं। उनको भी ये बात समझ में आई। उनको भी मैंने यही कहा कि लाइफ में कोई सफलता का कोई पैमाना नहीं होता है, नहीं होता है, और उसको पाने का कोई फार्मूला नहीं होता है, टैबलेट नहीं होता है। अदरवाइज मुझसे पहले पता नहीं कितने लोग इसका पेटेंट करा के आज उस पेटेंट से अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। न ही नौकरी करने की जरूरत होती है, न ही बिजनेस करने की जरूरत है। वही लोगों के लिए भी है
कि मेरी कही हुई बातें वो एक लाइफ में पार्ट है, उसके इतर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद भी इनोवेट करें, आप खुद भी समझें, आप खुद भी करें, तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। एंड नेक्स्ट मेरा ये है कि व्हाट वाज योर हाइलाइट ऑफ योर दिस, आई वुड नॉट से जॉब जॉब, क्योंकि जज को जॉब में डालता हूँ, देयर आर ऑल सर्विसेज, देयर आर ऑल जॉब्स, बट जज इज समथिंग एल्स, राइट? तो आपने अपने करियर जो आपका मेन हाईलाइट रहा, जैसे किसी कोई केस मतलब कि आपके दिल के करीब रहा हो और आपको सेटिस्फैक्शन मिला हो कि यार इसमें मैंने जस्टिस किया, जस्टिस तो ऑफ कोर्स आप सब में कर रहे हैं, उसमें आपको लगा हो कि दिल को एक सुकून मिला, बड़ा हाईलाइटेड केस कुछ ऐसा बताइए जिससे लोग को भी पता चले और इंटरेस्ट। कोर्ट के कामों में हर केस, एक समस्या जो आ गई है डेट में, वो पब्लिसिटी है। जज के लिए हर केस के मायने बराबर होते हैं। मीडिया केसेस आते हैं और मैंने में कभी भी मुझे एक बार कहा गया तो मैंने साथ में मना किसी चीज़ को करूँगा, चाहे हाईलाइटेड। इसका ट्रायल अगर आप कहोगे बाउंड करने के लिए, तो मैं मेरे लिए केस टाइम बाउंड है। मैं चाहता हूँ केस टाइम बाउंड है। मेरे पास लानी से लेके और इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, रेप केसेस, पॉक्सो मैटर, बिजली चोरी, रेंट मैटर्स, सब तरीके के मैटर्स रहे। उसमें बहुत से हाईलाइटेड केसेस भी रहे, लेकिन उसमें मैंने कभी मैंने कभी, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इंटरव्यू भी दे रहा हूँ अविनाश जी के कहने पे। मेरी कोशिश ये रहती है, जज का काम होता है कि वो किसी केस को हाईलाइट ना करके वो हर केस को हाईलाइट करके रखे अपने पास, तभी वो लोगों को, क्योंकि आप न्याय देते हो, वो न्याय का भी आज की डेट में चेंज हो चुका है। अगर फैसला किसी के में है तो उसको न्याय मानता है, उसके अगेंस्ट हो गया तो नहीं मानता है। लेकिन का काम है कि उसकी दृष्टि को बदल देना। आपके यहाँ से फैसला फेवर में हो, अगेंस्ट में हो, जाने वाला वादी प्रतिवादी अगर उस चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करता है, तो वही न्याय की परिभाषा है। इसलिए केसेस हर तरीके के रहे, उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस रहे जो कि बाहर के कुछ केसेस ट्रांसफर होकर मेरे पास आए, और उन केसेस में भी लोगों ने कहा कि इसका ट्रायल टाइम बाउंड करो। मैंने कभी नहीं किया। उसका रीज़न रहा है मेरे जो भी मैंने हर टाइम करता हूँ और आज भी करता हूँ, और आगे भी रहेगी कि वो चीज़ें। अविनाश जी फिर आगे पूछ रहे हैं कि भाई मेरी टेंडेंसी जो वो एक भाग्य है, वो चीज़ बीट नहीं होती है, और उसमें सबका रोल होता है, जिसमें प्रोसिक्यूशन शामिल होता है, उसमें डिफेंस लॉयर शामिल होते हैं, उसमें पुलिस शामिल होती है। अगर डेट मांगने वाला डेट नहीं मांगेगा, वो सफलता है। केस डिसाइड करना मेरी सफलता नहीं है। अगर केस में डेट नहीं लग रही बिना काम के, तो एक कोर्ट की सफलता ये है कि आपको सामने आने वाला जो भी है वो जिस काम का है वो करके जाए। हमारी सफलता उसी में है, ना कि पर्टिकुलर केस करना या पर्टिकुलर केस डिसाइड करना। तो मेरा अपना बस इतना ही करना है कि केसेस मेरे लिए सारे हाईलाइटेड हैं, आज थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इस चीज़ को मैं आज की डेट में हाईलाइट नहीं करना चाहता कि कौन से केस को, क्योंकि एक केस को बोलने का मतलब होता है बाकी प्यारे सारे केस होते हैं, डिस्पोजल का होता है, पेंडेंसी भी होती है। तो भैया मतलब ऑफ आई थिंक वेरी फ्यू जजेस जिनकी पेंडेंसी एक तरह से नेग्लिजिबल रहती है, मतलब बहुत ही क्लैरिटी के साथ सारा इन्होंने काम किया है, सारा चीज किया है, राइट? इसके बाद एक एडवाइस और उन लोगों को दीजिए जो कि अभी पास आउट किए हैं और लॉ में करियर बनाना चाहते हैं, जो कि अभी या फिर 11th में गए हैं या फिर 12th में गए हैं या पास आउट हुए हैं, उनको जाना है, उनको करना है, उसके लिए बताइए। हमेशा यंग बच्चों के लिए कि भाई इससे बढ़िया कोई फील्ड नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपके पास
ये सबसे बढ़िया फील्ड है आज की डेट में। चीज़ों को समझने के लिए क्लैरिटी के साथ पाओ लाइफ में, का है कि आप आगे जाओगे। इस फील्ड में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी और मेहनत, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, अगर आप ये कंबाइन करने के लिए राजी हो तो आप बिल्कुल आओ इस फील्ड में। और जितना जल्दी आओगे सफलता मिलने के चांसेस उतने ही जल्दी होंगे। अगर आप चाहते हो कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो तो आप टाइम से तैयारी शुरू करो, क्योंकि स्पेशलाइज वो आप अदरवाइज अगर तैयारी नहीं शुरू करते हो तो कतई उन चीज़ों को कोप अप नहीं करोगे और क्वालिफाई करने में आपको दिक्कत आएगी। अगर आप चाहोगे बिना तैयारी के, जितनी यंग एज में, जितनी अर्ली एज में उन चीज़ों को समझना करना शुरू करोगे उतने ही जल्दी सफलता आपके चांसेस और उतनी ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Thank you so much, Bhaiya, for having you. And it was my complete pleasure to introduce your legacy to all the viewers, to all the friends. भैया की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा है, इनसे कोई भी करो, कुछ पूछो भी तो इतनी क्लैरिटी के साथ ये बताता है कि मजा आता है. आई होप दैट यू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? थैंक यू मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू.